So we are starting with the first session on numbers. पिछले 2 साल से numbers and geometry we have been seeing equal number of questions in CAT. So today's session is going to be introduction to numbers, different types of numbers, थोड़े बहुत formulae, properties of even, odd, prime, addition के formulae, reoccurring decimals और बाद में basic questions, even है, odd identify करो, prime identify करो, and so on and so forth. So when it comes to categorizing numbers, ये जानना जरूरी है how a number is categorized. तो बहुत ही broadly, very broadly, we categorize numbers as either the number is imaginary or the number is real. अगर imaginary है तो उसमें I का multiple होगा. Like if I say a number is 2i, a number is 2 plus 3i, कहीं से I होगा. What is I? I is iota root over minus 1. In numbers we do not deal with imaginary values. ये हम algebra में use करते हैं. You can go through algebra lectures. We have discussed imaginary roots, imaginary values. हम numbers में deal करते हैं real values से. Real values should not contain the variable or term I. It should not have I in it. Root over minus 1 नहीं होना चाहिए. So number is real. Now real numbers are broadly categorized as irrational numbers and rational numbers. By definition, the word irrational means something which does not make sense. वो number का sense नहीं बनता. Something which is rational makes sense. जैसे हम politicians को बोलते हैं irrational person है, irrational policy ला रहा है, irrational बातें कर रहा है, मतलब makes no sense. So when these numbers were discovered, they made no sense. ऐसा number है, कोई ऐसा number है 2.34689824 चलता जाएगा infinity तक without any pattern. A number that does not terminate, a number that does not repeat is called irrational. Non-ending, non-repeating are irrational. सबसे common example, the constants that you use in physics and maths are mostly irrational. जो e है, log में use करते हैं e, exponent is irrational. Pi, gravitational constant, these are all irrational. तो जो irrational numbers होते हैं, you cannot put them in the form of p by q. देखो, if I write a number 2.37, I can put it as 237 upon 100, एक p by q form बन गया. अब मुझे पता ही नहीं डिजिट कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, तो I cannot write infinite zeros here. So irrational number cannot be written as p by q. अब एक स्पेशल टाइप ऑफ irrational numbers हैं जो आपने algebra में देखे हैं बट यहाँ कवर नहीं होते. देखो, when you calculate a square root of 16, तो ये क्या है, एक खुद perfect square है, तो square root cancel हो जाएगा. When you calculate, let us say cube root of let us say 27, तो ये क्यूब, ये किसी का क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा ऐसा. बट अगर आप कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर तो नहीं है ना, इट इज अ इररेशनल वैल्यू. व्हेन द nth रूट कैन नॉट बी कैंसिल्ड, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो फिफ्थ रूट ऑफ 30, तो किसी का पावर 5 होता ही नहीं है, तो यू कैन नॉट कैंसिल दिस, तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इररेशनल. अब इसे लोग कैसे रख लेते हैं, nth रूट मस्ट बी इंटीजर. नहीं, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं 2.56 का, ये किसका स्क्वायर है, 1.6 का, तो बेटा दिस इज रैशनल. दीज आर इररेशनल. इनफैक्ट 0 और 1 के बीच में आप इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स बना सकते हो. 1/√2, 1/√3, 1/√5 एंड सो ऑन सो ऑन. इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे आपके between 0. Irrational are very common. तो what are rational numbers? या तो terminate होगा ऐसा, या तो repeat होगा. Non-ending, non-repeating numbers are irrational. Mathematical constants, physics constants are irrational. ये मैं आपको additional example बता रहा हूँ.
when the root over cannot be cancelled. Cube root over, square root over, fourth root over, it cannot be cancelled. It becomes irrational. Rational numbers will either end or they will repeat. तो रैशनल नंबर्स का जनरल फॉर्म p बाय q होता है. आपका जॉब है q को जीरो नहीं होने देना, क्योंकि q जीरो हो गया इट बिकम्स नॉन डिफाइंड. What are the types of rational numbers? Very broadly we say natural numbers, जो आप काउंट कर सकते हो. 1 person, 2 people, 3 people, chairs, benches, आप काउंट करते हो. नेचुरल नंबर्स जितना गिनना है जाओ इन्फिनिटी तक गिन लो as much as possible. Then we have whole numbers. whole numbers में और इनमें क्या फर्क है? अवेलेबिलिटी ऑफ जीरो, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. तो जीरो आने से एक नया कैटेगरी बन गया whole numbers. What are integers? इंटीजर्स के बीच में क्या होगा? 0 1 2 3 राइट साइड में इंक्रीजिंग, लेफ्ट साइड -2 -3 अप टू -infinity. इंटीजर्स डोंट हैव डेसिमल्स. इंटीजर्स में नेचुरल नंबर होंगे राइट साइड में, नेचुरल नंबर का नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में और बीच में होगा 0. इसको आप नंबर लाइन बोला करते थे बचपन में. नंबर लाइन. व्हेन यू हैव टू लोकेट -3 तो 0 से 3 जंप लेने लेफ्ट साइड पे, आपको 3 + 4 करना है तो 3 से 4 जंप. तो ये बचपन में आप यूज किया करते थे. व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस आर p by q. p cannot be 0, q cannot be 0. अभी 2 मिनट लो, इसको लिखो आप लोग. राइटिंग हो जाए तो कमेंट डन. तो फ्रैक्शंस पे थोड़ा बात कर लेते हैं. नेचुरली वी हैव सेड न्यूमरेटर 0 नहीं होगा. थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता. What is the difference between a rational number and a fractional number? 0 is a rational value, 0 is not a fractional value. Otherwise बाकी सारे नंबर फ्रैक्शनल हैं. अगर आप मुझे बोलोगे 3 तो 3/1 is a fractional. आप अगर बोलोगे 5 तो 5/1 is a fraction. अब वो प्रॉपर इम्प्रॉपर अलग बात है. So when we talk about fractions, we divide them broadly in two categories: proper and improper. वैसे होते तो बहुत सारे डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, इजिप्शियन फ्रैक्शंस होते हैं, देयर समथिंग कॉल्ड एज वल्गर फ्रैक्शंस आल्सो. दुनिया भर के होते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? The numerator value is below denominator, like 2/5, like 3/9, something of this nature. Numerator छोटा होता है. What are improper fractions? Numerator is more than denominator. इस केस में if you notice 5/2, 9/7, 11 by let us say 4. अगर improper है, I can further divide this as, see, if I divide this, say 2 times 1/2. This is 1 times 2/7. This is 2 times 3/4. This way of writing is called mixed
इसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, 2.3/4 इज एज गुड एज 2 + 3/4. इसको मिक्स क्यों कहते हैं? This is the integer part and this is the fraction part. So improper fractions can be converted to mixed fraction. अब इसमें भी आपने बहुत चीजें पढ़ी हैं बेटा, याद करो. स्पीड मैथ्स में भी करवाया है मैंने आपको और रेशो प्रोपोर्शन में भी करवाया. If I give you random numbers like this, 12/19, 17/24, 28/35, तो डिवाइड हो जाए, कोई बात नहीं, डिवाइड हो जाए, कोई इशू नहीं है. अब मैं आपसे कहूँ इन्हें कंपेयर करो ए, बी और सी को. पहली बात तो these are all proper fractions. These are proper fractions in which same number has been added to both numerator and denominator. A proper fraction increases when you add constant to both. अब मैं चाहूँ तो इसमें क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, बट आपने ये रेशो प्रोपोर्शन में कर रखा, स्पीड मैथ्स में भी कर रखा है. What was the wording? How the rule has been framed? A proper fraction increases when a constant is added to both. Both means numerator and denominator. इसका उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. अगर आप कांस्टेंट ऐड करोगे तो आपका नंबर डिक्रीज हो जाएगा. अगर आपके पास 19/12 है, आपने 10 ऐड कर दिया, 29/22, आपने 100 ऐड कर दिया. यू कैन ऐड एनीथिंग यू लाइक. It should be same in both. Improper fraction decreases when a constant is added to both. अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ. कैट 23 के स्लॉट 2 के पेपर में वहां आपको प्रिडिक्ट करना है एक्स और वाई का नेचर कैसा होगा जब उनमें कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है और इनइक्वालिटी बन रही है. थोड़ा एडवांस है इससे, बट अंडरलाइन प्रिंसिपल ऐसे ही कुछ है. You can check this out. कैट 2023 लिख लो इनको. टेक 2 मिनट्स. बहुत छोटे छोटे से थ्योरम्स ऐसे बिल्डअप होता जाएगा. Guys, comment done. Proper ratio increases on adding constant. Improper ratio decreases on adding constants. चलो बिल्डअप करते हैं इस पे. नाउ ये चारों पांचों में एक ही कॉमन थीम है. इफ आई टेल यू देयर इज a which is 0 point any number 2 2 2 2 up to infinity. b
is 0.35 या 343434. It could be anything up to infinity. C is 0.127127127 up to infinity. D 0.2464646 up to infinity. और आखिरी में let us say E 2.3454545 up to infinity. तो इन सब में क्या कॉमन लिंक है? दे हैव रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि डेसिमल रिपीट हो रहा है किसी भी फॉर्म में, इट इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर है तो पी बाय क्यू का फॉर्म बन सकता है। कैड में आज तक केवल 2 ही बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, बाकी एग्जाम्स में आए तो पता नहीं, और बड़ी आसान से क्वेश्चंस आए हैं विच आई कैन रेज द बार एंड मेक इट वेरी डिफिकल्ट, बट अभी नहीं करते। रैशनल नंबर्स हैं तो पी बाय क्यू का फॉर्म होगा। तो क्या होता है पी बाय क्यू का फॉर्म? लंबे लंबे डेरिवेशंस क्यों करने हैं आपने? इन सब में क्या कॉमन है? रिपीटिंग वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यहाँ से रिपीटिंग वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है 1 9, 2 नंबर्स रिपीट 2 9s, 3 नंबर्स रिपीट 3 9s। एंड व्हाट इज दैट रिपीटिंग नंबर? रिपीटिंग नंबर इज 2, 34 एंड 127। अब इनमें क्या फर्क है इन दोनों में? देयर इज अ नंबर आफ्टर डेसिमल दैट डज नॉट रिपीट। हो सकता है ऐसे 2 नंबर हो, ऐसे 3 नंबर हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो ना इनको ऐसे लिखा, थोड़ा ध्यान से देखना। 0.2 जो रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगाया जाता है। 2.3 जो रिपीट करता है वी राइट अ बार ऑन द टॉप ऑफ दैट। जितने नंबरों के ऊपर बार है उतने 9 आपके पास हमेशा होंगे। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स प्रोवाइड्स 9। डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है जो रिपीट नहीं होती है, दे प्रोवाइड यू जीरोस। ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, दे प्रोवाइड यू जीरोस। एंड व्हाट इज द न्यूमरेटर? पूरा नंबर लिख लो। व्हाट इज द कंप्लीट नंबर? 246 माइनस नॉन रिपीट। क्या नंबर है स्टार्टिंग से? 2345 माइनस 23, कंप्लीट नंबर माइनस नॉन रिपीट। इनमें नॉन रिपीट था ही नहीं तो माइनस क्या करोगे? तो माइनस बेसिकली 0 कर रहे हैं इनमें से। नॉन रिपीट था ही नहीं कुछ भी, इनमें देयर इज अ नॉन रिपीट वैल्यू तो माइनस होती है। इसका डिनोमिनेटर से पीछे कोई रोल नहीं है। अब मैं आपको ऑनलाइन वीडियो दिखा सकता हूं जहां पर 20 मिनट्स में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे 2 + 3/10 + 45/99, फिर इनका एलसीएम लेंगे 2 × 10 × 99 + 3 × 99। 20 मिनट बड़ी प्यार से एक्सप्लेन किया है। तो ना तो ये चीचा कैट निकाले ना तो आप निकालोगे बेटा, ये सब करोगे तो जाहिर सी बात है कभी ऐसा इजी क्वेश्चन आ भी गया तो somebody who knows this method ये 10 सेकंड में आंसर लगाएगा। आप 20 मिनट ले रहे हो वीडियो देख के। वीडियो वाले का व्यू बढ़ेगा, व्यू टाइम बढ़ेगा, लॉगिन टाइम बढ़ेगा। कल को इन्वेस्टर उसके पास आएगा, बोलेगा देखो हमारे पास कितने घंटे वीडियो चलते हैं, वी हैव मोर व्यू टाइम देन नेटफ्लिक्स। ऑल अराउंड कॉर्पोरेट हैप्पीनेस तुम्हारा तो क्या खत्म हो जाएगा ना। तो डोंट गो फॉर दिस स्टूपिड मेथड्स। लेफ्ट साइड में बेटर अप्रोच है। नंबर ऑफ जीरोस नॉन रिपीटिंग डेसिमल देता है, डेसिमल। आप जब ऐसा लिखते हो 2.356 तो जहां डेसिमल होता है वहां 1 लगाते हो और पीछे 0 0 लगाते हो। तो एक बात बताओ, इस 2 का नीचे कोई रोल था क्या? ये 2 नीचे कहीं काम आया क्या? नो। डेसिमल के बाद की वैल्यू काम आती डिनोमिनेटर में। डेसिमल के बाद ये 3 रिपीट नहीं हुआ तो वो 0 देगा। लैंग्वेज नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स प्रोवाइड अस zeros। लिखो इनको। कमेंट डन।
इनसे आगे बढ़ते हैं. अगेन डेसिमल के बाद की वैल्यू का डिनोमिनेटर में रोल है. व्हाट इज द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज ऑलवेज कंप्लीट नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग वैल्यू. मूविंग ऑन. थोड़ा सा बात कर लेते हैं इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के लिए. व्हेन यू से इवन नंबर्स, when you say odd numbers, by default you are considering them under natural numbers, क्योंकि natural numbers में कंसिडर होते हैं and zero is not a natural number. In India, zero is not a even value, even number. Zero is not an even number. So even numbers start from 2, 4, 6, 8, and then you can go up to as high as you like. All even numbers must be of the form 2n and starting from 2. Even numbers start from 2. If you ask me 0 is even or not, or 0 is even or not, so I'll say 0 is even integer. Integer, not a even number, it's an even integer. Is minus 2 even? Yes, it's an even integer. It's not an even number. When you talk about odd numbers, 1, 3, because under natural numbers, it starts from 1. So 1, 3, 5, 7, 9, 11, these are all odd numbers. You have two choices. You can write odd number as 2n minus 1. You can also write 2n plus 1. But I prefer, this is the better way of doing so. Okay, this is second odd number. Second, you put 2 in this, you get the second odd number. This is the fifth odd number. 2 into 5 minus 1 is 9. So position gives me the value of number. If I want to know 123 is which odd number, I'll go for this. दोनों ही odd number. Non-multiples of 2 which are natural are odd. Non-multiples of 2 can be 2n plus 1, 2n minus 1. Non-multiples of 2 are odd numbers. Better way is the left hand side. Minus 3, minus 5 are odd integers. तो इनके वो जो 4-5 फॉर्मूले आपने सीखे आज रिवाइज कर लेते हैं फिर से. This is called addition of natural numbers. This is the formula. This is called the addition of squares of natural numbers. Formula. This is 2n plus 1. Please pay attention. There is 2n plus 1. Addition of cubes. Addition of even numbers. Starting with 2. Always starting with 2. 2, 4, 6, 8, 2n. ध्यान देखना. Last value is 2n. Addition is n into n plus 1. Addition of odd numbers 1, 3, 5, 7 and so on, so on, so on. The last value is 2n minus 1. That is n square. ध्यान से देखो, last value is 2n minus 1, not n. तो ये 5 फॉर्मूले आपको यूज होते रहेंगे, नंबर्स में भी काम आएंगे एंड सीक्वेंस सीरीज एल्जेब्रा में भी काम आएंगे. इनफैक्ट इन सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी इजीली आपने 10 से 12 क्वेश्चंस बनाए हैं इन फॉर्मूलों से. पहले जनरल टर्म निकालते हैं, देन वी अप्लाई समेशन. ट्रायंगुलर सीरीज में लगाया आपने, इसको आपने लगाया है क्वाड्रेटिक सीरीज में. 1 अपॉन करके टेलीस्कोपिक बनता है तो आपने फैक्टराइज से किया है.
छोटे मोटे क्वेश्चंस कई सारे फ्रेम हो सकते हैं इसके ऊपर में। देखो आगे बढ़ते हैं इनसे। Now थोड़ा सा काम की चीज है, it is specific and unique to numbers when we talk about prime values or prime numbers. So definition में जो आपने पढ़ा है, a number is called prime when it is divisible by 1 and itself only. वो नंबर जो खुद से और एक से डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है, is called a prime number. ये थोड़ी बच्चों वाली डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल टर्म्स थोड़ा ध्यान दो। जो चीज डिवाइड करती है, वन डिवाइड्स एन डिवाइड्स एन, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. So mathematically speaking, a prime number has exactly two factors. A number that has exactly two factors is called a prime number. Divisors factors होते हैं, जिस नंबर के केवल दो डिवाइजर्स हैं, that is called prime. इसी रीजन से -7 is not prime, क्योंकि -7 1 से डिवाइड होगा -7 टाइम्स और 7 से डिवाइड होगा -1 टाइम्स. तो how many factors are there? There are 4 factors. Every negative integer has 4 factors. That is why prime numbers cannot be and must not be negative. तो आपको मैं लिस्ट दे देता हूँ, एंड मेक श्योर यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस लिस्ट. बहुत काम आएगा आपको आगे भी हायर क्वेश्चंस बनाने में भी. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. देखो मुझे भी याद नहीं है. देयर इज अ ट्रिक टू टेस्ट, ट्रिक टू लोकेट प्राइम नंबर्स. 6 के मल्टीपल से एक कम और एक ज्यादा चेक करना पड़ता है, हमेशा नहीं होता. 12 के मल्टीपल से 6 के मल्टीपल से एक कम और एक ज्यादा है. 18 एक कम और एक ज्यादा है. अगला 24 आएगा. एक कम तो प्राइम होता है, बट एक ज्यादा हो सकता है कि एक ज्यादा 25 इज नॉट प्राइम. अगला मल्टीपल 30, -1 एंड +1 बोथ आर प्राइम्स. वो टेस्ट कैसे करते हैं, आई शो यू. अगला 30 के बाद 36, -1 प्राइम कैसे हो सकता है, +1 इज प्राइम. 42, -1 +1 both are prime. 48, -1 is prime. 54, -1 is prime. 60, -1 +1 both are primes. 66 +1 is prime. 72, -1 +1 both are primes. 78 +1 is prime. 84 -1 is prime. तो आपके मन में एक रीजन आ रहा होगा, सर एक प्राइम तो हमेशा मिल ही रहा है. बेटा नॉट नेसेसरी. 91 is not a prime. 91 is 7 into 13. इसको लिखना ही मत. 91 is not a prime. 91 बहुत मिस्टेक करते हैं लोग. तो up to 100 ये सारे आपके प्राइम्स हो गए. There are 25 primes up to 100. लिख लो इनको. 6 के मल्टीपल के आसपास प्राइम मिलते हैं. We have to check. तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है. If you know that, सुनो लैंग्वेज सुनना, फर्क है दोनों चीजों में. If you know that number is prime, पता है आपको, कंफर्म है, and it is more than 3, 3 से बड़ा है, तो it will either look like this or it will look like this. अगर प्राइम है, ये कंफर्म है, then you can say इनमें से एक फॉर्म उनका दिखेगा, इनमें से एक उनका फॉर्म होगा. ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 पुट कर दोगे तो जरूरी है प्राइम मिल जाएगा, यहाँ 20 पुट कर दोगे प्राइम, नॉट नेसेसरी. ऐसी बात नहीं है. कह रहे हैं प्राइम है, कंफर्म है. कैसे कंफर्म करते हैं, आई शो यू, आई टेल यू. बट इफ यू आर कंफर्म इट इज प्राइम मोर देन 3, तो 6 के मल्टीपल के आसपास होना जरूरी है उसका. लिखो इनको, टेक अ मिनट और सो.
चलो अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन जिससे मैं अभी आपसे कह रहा था, एक ओपिनियन बन जाती है 6 के मल्टीपल पे हमेशा प्राइम मिलेगा. सो लुक एट दिस नंबर. ये 120 है, इससे एक कम 119 है विच इज 7 into 17, और इससे एक प्लस 121 है विच इज 11 स्क्वायर. दोनों ही प्राइम नहीं है. नन ऑफ दीज आर प्राइम. तो ये जो आपका थॉट है कि हमेशा एक तो प्राइम मिलेगा इज नॉट नेसेसरली ट्रू. There is no pattern in creating primes. There is no pattern in counting primes. रामानुजन जो फर्स्ट थ्योरम प्रिंट करना चाहते थे, यूके जाके पब्लिश करना चाहते थे, इट वाज अबाउट काउंटिंग प्राइम्स. तो ये थ्योरम फेल हो गया था. लकीली ही डिड नॉट पब्लिश, नहीं तो यू वुड नॉट हैव हर्ड अबाउट द लेजेंड ऑफ रामानुजन. अब प्राइम नंबर चेक कैसे करते हैं? देयर इज ओनली वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथड. ये फुल प्रूफ है. उसकी भी लिमिटेशन है. बहुत बड़ा नंबर आप नहीं चेक कर सकते. If I talk about a number, let us say 241, ये प्राइम है कि नहीं, I want to check. तो पहले आपको इससे बड़ा स्क्वायर सोचना पड़ेगा. 15 का स्क्वायर 225, इससे कम है. 16 का स्क्वायर 256, 256 इससे बड़ा है, और 16 का स्क्वायर है. You write down every number from 2, 3, every prime number 5, 7, 11, 13 up to this point. 16 तक ये सारे प्राइम. अब एक एक करके चेक करते जाओ. इज इट डिविजिबल बाय 2? नो. डिविजिबल बाय 3? तो आपको रूल सिखाएंगे आगे. डिजिट का सम इसका 7 है तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. 5 का तो 05 होता है, नॉट अ मल्टीपल. क्या 7 का मल्टीपल है? आई डू नॉट नो. एक बार चेक कर लो. 241 डिवाइडेड बाय 7, 21, 31. 31 डिवाइड नहीं होता. क्या ये 11 का मल्टीपल है? बहुत तरीके चेक करने के. कैन यू से 220 is a multiple, बच गया 21. This is multiple of 11, but ये नहीं है तो ये भी नहीं है. 13 का मल्टीपल जी ध्यान से देखना. 260 is a multiple of 13. उससे कितना कम है ये? उससे 19 कम है. This is multiple of 13, लेकिन ये नहीं है तो ये नंबर भी नहीं होगा. So this number is a prime number. अब आप ऐसा चेक कर पाओगे कि फॉर नंबर लाइक 2, 4, 1, 3, 7? नहीं ना. तो आपकी limitations are restricting this method. Otherwise it is a universal method. Think of a square above, और वहां तक सबको चेक करते जाओ. यू कीप ऑन डिवाइडिंग बाय प्राइम नंबर्स अप टू दैट पॉइंट. डिवाइड हो गया तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. डिवाइड नहीं हुआ तो इट इज अ प्राइम नंबर. इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड द ओनली प्रूवन मेथड कि हर बार सही आंसर आपको देगा. बाकी 6 का मल्टीपल है कि नहीं प्लस में, दो आर टेम्पररी मेथड्स. जैसे 25, 25 भी तो 6x plus 1 का फॉर्म है, बट ये तो प्राइम नहीं है. इट इज अ स्क्वायर. अब एक छोटा सा प्रॉपर्टी और देख लो. आई एम नॉट श्योर आ सकता है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में आ जाए तो आ जाए. The numbers which are created from the same multiple of 6 are called twin primes. ये twin primes हैं, ये twin primes हैं. These are all twin primes. There's something called as Mergen prime as well. अलग ही concept है, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे. These are all twin primes. Two primes generated from the same multiple are twin primes. Numbers
Prime numbers more than 3 with a gap of 2 are twin primes. Prime numbers more than 3 with a gap of 2 are twin primes. तो ये आपके सामने 5-6 पेयर्स हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के. मूविंग ऑन. तो बेसिक थ्योरी हमने सारी देख ली है. एक बार वो इवन ऑड नंबर कैसे काम करते हैं देख लेते हैं. If you add or subtract two even numbers, you expect a even outcome. You add or subtract two odd numbers, you expect an even outcome. You add or subtract one even, one odd number, you expect a odd outcome. You multiply even number with other numbers, as long as they are natural, you expect a even outcome. अगर आपका multiplication is odd, you can be sure all values must be odd. क्योंकि अगर मल्टीपल ऑड है मतलब एक भी इवन नहीं हो सकता, देयर ऑल ऑड. थोड़ा रिवर्सल ऑफ प्रॉपर्टी है. दूसरा, इवन के ऊपर आप कोई भी पावर रख दो, आउटकम हैज टू बी इवन. ऑड के ऊपर आप कोई भी पावर रख दो, आउटकम हैज टू बी ऑड. बस जीरो मत रखना पावर. जीरो जो है थोड़ा अलग कहानी है. एनी नॉन जीरो पावर यू पुट, जैसे आपने नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, आपने 2 के ऊपर में पावर 7 रखो, चाहे 2 के ऊपर में पावर 4 रखो, पावर का फायदा नहीं. बेस 2 है तो आउटकम विल बी इवन. नीचे 31 है, अब ऊपर पावर कुछ भी रखो, 11 रखो, चाहे 12 रखो, चाहे 13. नीचे ऑड है तो आउटकम विल आल्सो बी ऑड. द एलिमेंट्री लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स. हाउ डू इवन ऑड नंबर्स वर्क? Types of numbers we saw: imaginary, real, rational, irrational, natural, whole numbers, integers, fractions. Fractions की थोड़ी property we saw. Then reoccurring decimals we saw. फिर even odd की property we saw. Prime number we just completed. तो basic theory of numbers is clear. You have seen basic theory. Factorial यहाँ पे कोई sense नहीं बनती. It will be burdening you with unnecessary knowledge at this stage. फैक्टोरियल का पूरा अलग लेक्चर रखेंगे फैक्टोरियल्स का. Let us try a few questions. को प्राइम नंबर आगे आगे बेटा जब मैं आपको ये सिखाऊंगा डिवाइसेस एलसीएम एचसीएफ, तो को प्राइम का एप्लीकेशन वहां पर आएगा. डिवाइसेस एंड एलसीएम एचसीएफ, को प्राइम्स, काउंटिंग को प्राइम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ को प्राइम्स. को प्राइम के भी कुछ जनरल पैटर्न्स होते हैं. n with every value is co-prime, 1 with every value is co-prime, 2 prime numbers are co-prime, consecutive numbers are co-prime. ये आगे आएगा. चलो, तो ये रहा पहला सवाल आपका. टेक 2 minutes completed. Complete this.
So you already have pattern for all of these. You already have pattern for all 4 of these. तो hardly 20 सेकंड के 10 सेकंड के क्वेश्चंस हैं ये. So first one looks like 37 by 99. अब सेकंड वाले में स्टार्ट 0 से हो रहा है लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, 0 इज ऑल्सो रिपीटिंग. तो 999 और ऊपर 053. अब इसमें थोड़ा अलग कहानी है. आई नोटिस हियर यहां से रिपीट हो रहा है. दिस इज रिपीटिंग फ्रॉम हियर 545454. आई विल नीड 2 9s. और क्या रिपीट नहीं हो रहा है? 012 इज नॉट रिपीटिंग. व्हाट वाज द वर्डिंग? नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स प्रोवाइड zeros. What is the numerator? Complete number. 0 1 2 5 complete number minus what is not repeating? 0 1 2. ये प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग. रीअरेंज कर लो, जो कैंसिल कर सकते हो कर दो. व्हाट इज दिस? 36 36 36. तो नीचे क्या आ जाएगा? 99. सामने क्या आ जाएगा? 5 उसका 0. तो आपका जो नंबर रहेगा 2536 कंप्लीट नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग. 2 का कोई रोल नहीं है डिनोमिनेटर में. So everything is these two are worth 20 सेकंड 10 सेकंड. these थोड़ा 5 सेकंड और बढ़ा दो, थोड़ा और बढ़ा दो. मेथड रेडी है, फॉर्म रेडी है, बट वेल इज मूव ऑन. तो ये सेम क्वेश्चन है. अगर आप डेरिवेशन मांगते तो ऐड केप वन एक्स्ट्रा पेज. You are looking at a CAT question which is prehistoric. बताओ. a plus 2, a plus 4 are prime numbers. How many such values are possible for a? ऐसे कितने values possible है a के लिए? If all 3 of them are prime numbers, a plus 2, a plus 4, all of them are prime numbers. तो देखो, यू आर सेइंग कि इनके बीच में दो नंबरों का गैप है. डू यू रिमेम्बर प्राइम नंबर्स? अगर आपने देखे यहाँ पे तो देखो एक एक करके प्राइम नंबर्स दूर होते जा रहे हैं. +4 +6 तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड प्राइम नंबर्स. तो अगर ऐसा नजदीक नजदीक में प्राइम नंबर रखना है आपको तो वो छोटे स्केल पे ही होंगे. इफ यू लुक एट 2 3 5 7 11 13 17 19 23. तो यहाँ पे 2 नंबरों का गैप है. 2 नंबरों का गैप तो बहुत मिल जाएगा आपको. 2 नंबरों का गैप तो बहुत मिल जाएगा. हर ट्विन प्राइम में 2 का गैप होता है. लेकिन आगे भी 2 का गैप आप देखो, इट इज ओनली पॉसिबल फॉर दीज 3. यहाँ पे 2 का गैप है लेकिन यहाँ पे 4 का गैप आई कैन नॉट कंसिडर, क्योंकि मुझे a+2 से a+4 जाना है. देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है. आप जैसे ही 3 से आगे गए, यू आर नॉट कंसिडरिंग 2 and 3, जैसे आप 3 से आगे गए, फॉर्मेट इज दिस और द फॉर्मेट इज दिस. ये आपका प्राइम है. इसमें आपने +2 कर दिया, 6x + 3. तो ये किसका मल्टीपल हो गया? 3 का. कैन देयर बी अ 3 का मल्टीपल विच कैन बी प्राइम? नो. इसमें आपने +2 किया, फिर आपने +2 कर दिया, तो ये हो गया 3 का मल्टीपल.
आफ्टर 3 आप अगर +2 करोगे तो एक ना एक मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। आप यहां से +2 करके फिर +2 करोगे तो नोटिस हियर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। सो मैथमेटिकली आई कैन डू दिस थ्रू 6x + 1 6x + 6x - 1 +2 करने से मल्टीपल ऑफ 3 आ गया। तो 5 से आगे तीनों नंबर नहीं हो सकते। ऑल 3 प्राइम्स कैन नॉट बी फ्रॉम 5 ऑनवर्ड्स, एक आधा पीछे रहना पड़ेगा। तो अब देखिए छोटे स्केल में 3 5 7 देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक सवाल, पेपर बेस्ड एग्जाम हुआ करता था के जमाने का। चलो, x y z are three positive integers such that x is more than y is more than z. Which of the following will be closest to, nearest to x into y into z? Very easy questions. Fastest way to do this would be दो चार नंबर अज्यूम कर लो, 2 3 4 ले लो। सो 2 3 4 से ये क्या बन गया, 2 3 4 से बन गया ये 24। 1 से कम कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 2 18। इसको 1 से कम कर दो, 4 इंटू 2 इंटू 2 16। इसको 1 से कम कर दो, 4 इंटू 3 12। इसको 1 से बढ़ा दो, 4 इंटू 4 इंटू 2 32। कौन सा क्लोजेस्ट है? 6 का गैप है, 8 का गैप है, क्लोजर तो ये है। 12 का गैप है, क्लोजर तो ये है। और कितने का गैप है? 8 का गैप है, तो क्लोजर तो ये है। दैट इज आंसर। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है, इट इज बेस्ट यू अज्यूम 3 नंबर्स, मूव ऑन विथ इट, इट मेक्स नो डिफरेंस। आप 10 15 35 ले लो, बड़े बड़े नंबर लोगे calculations will become complicated, छोटे numbers लो calculation becomes easier. If you want to approach it through equations, देखो आप ऐसा करो, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड। आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है हर जगह पे, तो एक्स वाई जेड के क्लोजर वो वैल्यू होगी जिसका एडिशनल पार्ट छोटा है। देखो, क्योंकि y and z are the smallest numbers, तो y and z is the smallest product, xz थोड़ा बड़ा होगा, xy और बड़ा होगा, क्योंकि बड़े नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा मल्टीपल इज द डेविएशन हियर, तो ये भी बड़ा होगा। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल yz को प्लस माइनस करोगे, दिस इज द क्लोजेस्ट नंबर। You can try it through values, you can try it through basic equations, basic algebra. Let us try more. Confirmation on the second method. पहला तो evident है, you can see that. Guys, confirmation on this. कि क्या ही बनाओगे, इसको आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं बनाने की। चलो
ये बड़ी पुरानी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये कैट में क्वेश्चन आ रखे हैं. So when somebody says मैंने 2008 में 9 में एमबीए किया है क्रैक कैट करके 2006 या 7 में, तो यू नॉट एक्सपर्ट. ऐसे क्वेश्चन आया करते थे आपके टाइम पे. क्या ये तीन तीन ऑड नंबर्स हैं, उसमें 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस एंड थर्ड. क्या आगे बढ़ो, चलो ये बनाओ, ट्राई दिस. अब दो इंटीजर्स का एडिशन कह रहे हो इज 10, and then the addition of their reciprocals is 5/12. थोड़ा अगर रीअरेंज कर दे इनको तो इट बिकम्स a plus b upon a into b is equal to 5/12. अब आपको तो पता है ये 10 है, you put that value 10 upon a into b is equal to 5/12. cancel cancel, तो a into b is equal to 24. अब दिख ही रहा है 6 plus 4 is equal to 10. 6 into 4 is equal to 24. The larger of the two numbers is 6. C, C is the answer. Larger, पूछा है ना, larger of the two integers. C is the answer. ये थोड़ा सा यूनिक है, give it a try.
What is the question here? X, Y, Z are distinct positive integers satisfying x is less than y, y is less than z, and x plus y plus z is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine x, y, z uniquely? What is the smallest value of k that does not determine x, y, z uniquely? इसका मतलब है ये ऐसा नंबर होना चाहिए यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाए. If you can have different groups of three numbers adding up to k, so you are not having a unique possibility for x, y, z. जैसे अगर ये 6 होता तो 6 बनाने का there is only one possibility 1 2 3, क्योंकि आपको मोर करते जाना है. x y is more than x, z is more than y. 6 बनाने का एक ही तरीका है. तो अगर k is equal to 6 होगा तो I can uniquely tell you x, y, z. अगर k is equal to 7 भी हुआ, how much increment? 1 increment. देखो इसको तो 1 इंक्रीज कर नहीं सकते, 1 इंक्रीज करके इट विल बिकम 2. इसको 1 इंक्रीज कर नहीं सकते, इट विल बिकम 3 and 3. तो ये 1 इंक्रीज कहाँ होगा? यहाँ होगा. तो 7 अगर बनाना है आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज से, दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली वे. इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ काकूरो खेले करो, यू विल लर्न दीज थिंग्स. और कैट में लगभग हर साल 3 में से 1 स्लॉट में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं. मैं कल आपके लिए एक मॉक एनालिसिस कर रहा था, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस थे. सो इफ यू लेट अस से गो विथ 8, अब जो +1 है, कैन आई से वो +1 यहाँ पे दोगे तो एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा 1 3 4. वो +1 यहाँ पे दोगे तो एक नया पॉसिबल बन जाएगा 1 1 2 5. तो 8 is the smallest such number in which I am adding 3 distinct values, but they are non-unique. There are possibilities. There are possibilities. 8 is the smallest such number. बढ़े आगे. Very easy question. Give it a try. बहुत साल पहले कैट में ऐसा क्वेश्चन आया. X, Y, Z are all positive integers. Which of the following is not necessarily true? इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है ट्रू होना? If they are odd, आप उनका कोई भी पावर लगा दो, है तो odd numbers. Multiplication of odd numbers is odd. ये तो ट्रू है. अगर x और y odd है, उनके स्क्वायर भी odd होंगे. When you add two odd numbers, तो ये दो odd number will become even. Even को आप कहीं multiply कर दो, ये तो even है. It is true. So 1 and 2 are true. 1 and 2 are true. तो आप 3 and 4 चेक कर लो. 5 into x odd. Y is also odd. Z का कोई भी पावर लगा लो will remain odd.
जब 3 ऑड नंबर जुड़ेंगे इट विल बी ऑड। तो ए बी एंड सी आर 100% ट्रू, तो कौन सा नॉट नेसेसरली ट्रू? ये, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। आपको अगर वैल्यू लेके चेक करना है यू कैन ट्राई दैट, बट प्रॉब्लम ये अगर आपने x को 1 ले लिया और y को 3 ले लिया तो व्हाट यू विल फाइंड इज 1 क्यूब प्लस 1 टू द पावर प्लस 3 टू द पावर 4, तो कहीं आपका डिवाइड बाय टू इवन गलती से ना आ जाए, बाय अज्यूमिंग नंबर्स ये फॉल्स पॉजिटिव ना हो जाए, so avoid that outcome. D is not necessarily true. आगे बेटा एडवांस क्वेश्चंस भी हैं, गिव मी आंसर। What is median? What is median? If you write 2, 5, 7, number in the middle is called median. You write 3, 9, 15, this is median. Number in the middle is called median when written in the increasing order or decreasing order. वैसे 99% केस increase order में लिखा आता है. So the median of XYZ क्या है? Less than 1, between 0 and 1, greater than 1, cannot say. What answer do you have? Good, good. So what do we have here? आपको मीडियन चाहिए. देखो, there are multiple possibilities कि y का वैल्यू x से भी कम हो सकता है. जैसे आपने x ले लिया 0.49, आपने y को 0.1 ले लिया, क्या फर्क पड़ता है? तो मीडियन कैन बी आइदर x और मीडियन कैन बी y डिपेंडिंग अपॉन दैट. लेकिन x को मीडियन होने के लिए y से बड़ा होना पड़ेगा और y का मिनिमम वैल्यू 0 है. तो मीडियन इज मोर देन 0. मीडियन इज मोर देन 0 और कहां तक जाएगा? y का वैल्यू 1 तक जा सकता है, तो बिटवीन 0 एंड 1. वेरी इजी क्वेश्चन. बी बॉम्बे, बिटवीन 0 एंड 1. Try this. Which of the following may be false? Means others are true for sure.
you are telling me z is more than 1. How much more you are not saying? You are saying x is below 0. X is below 0. How much you are not saying? अब मुझसे कह रहा है ये पॉजिटिव है, मैं कोशिश करता हूँ इसको फेल करने. x इज मोर देन 1, मैंने x z इज मोर देन 1, मैंने z को 100 ले लिया. अब मना तो नहीं कर सकते, यू सिंपली सेड मोर देन 1, 100 लो. आपने कहा x इज बिलो 0, ये लो -1. अब मेरे को बताओ इज इट पॉजिटिव? नहीं ना. विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी फॉल्स? हियर आपका आंसर. व्हाई गो एनी फर्दर? क्यों जाना इससे आगे आपको? y into z can be less than 1, can be less than 1. आप ये लो 0.5 इसको ले लो और इसको 1.1 ले लो. तो 0.5 into 1.1, 0.55. इज इट लेस देन 1? यस, हो सकता है. ये तो ट्रू है, मुझे चाहिए था फॉल्स. x into y can never be 0. अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 0 होने के लिए वन ऑफ देम मस्ट बी 0, दोनों 0 नहीं हो सकते, तो ये भी ट्रू है. b and c आर ट्रू. y square minus z square is always negative. y का बड़े से बड़ा वैल्यू भी 0.999 होगा, स्क्वायर करो, और z का छोटे से छोटा वैल्यू भी 1.0001 होगा. तो z का वैल्यू y से बड़ा है, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा. These statements are true. What are we looking for? False. A can be false. जरूरी नहीं हमेशा false होगा. A can be false. वही क्वेश्चन है. Which of the following may be false? Moving on. P and Q are two positive integers such that P into Q is equal to 64. Which of the following cannot be the value of P plus Q? छोटा सा नंबर है, ऐसा भी नहीं कि 640 दिया हो, स्मॉल नंबर है. तो P और Q के पेयर्स बना के चेक कर लो. Which of the following cannot be P plus Q?
आपको ट्राई ऐसा करना है 1 into 64 तो p plus q is 65, it is possible. 2 into 32, so 34 is possible. 3 का multiple है नहीं, 4 into 16 तो 20 addition is possible. 5 का multiple है नहीं, 6 का multiple है नहीं, 7 का multiple है नहीं, 8 into 8 16 is possible. तो क्या नहीं बना एक बार भी? p plus q can never be 35. बिल्कुल बच्चों वाले सवाल. Absolutely. ये लो. तो ऐसा कह रहे हैं b is a 2-digit number, square of that number is a 3-digit value. b, e, m, p are distinct integers. Then what is m? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर याद करने होंगे, पता होने चाहिए. 31 square is the largest square which is 3-digit. 32 से क्या हो जाएगा? It will turn into 4 digits. What is the smallest 3-digit number? Square, which is 100. तो यहाँ पे कौन से नंबर्स के स्क्वायर करने से डिजिट रिपीट करेगा? Now do you notice here? I want this b to be the first digit. यहाँ पर जो b है वो स्क्वायर करके आखिर में आना चाहिए. So ट्राई करो. 11, 12, 13, 14 डिस्टिंक्ट होना चाहिए. 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144. ध्यान से पैटर्न देखो. 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196. अभी देखो आखिरी में कहीं पे 1 आ रहा है क्या? देखो, डू यू सी 1? केवल इसमें 1 आ रहा है, बट दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, तो ये बाहर हो गया. आखिरी में 1 होना जरूरी है. आखिरी में 1 कौन देगा? 19 का स्क्वायर. 19 का स्क्वायर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इज 361. ये वाली वैल्यू आखिरी में आ गई. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 242, हाँ 480, 4 नहीं रिपीट कर रहा है. 23 स्क्वायर
आखिरी में 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर ऑड है तो आखिरी में 2 कैसे आएगा? 24 स्क्वायर 570 कहीं नहीं आ रहा, देखो देयर इज नो पॉसिबिलिटी, तो ओनली वन दैट मैचेस इज 19 स्क्वायर। व्हाट इज m पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज m? m इज 3। यू कीप ऑन परफॉर्मिंग स्क्वायर्स, आपको चेक करना पड़ेगा कितने 10-11 स्क्वायर्स ही तो है। Try this similar kind of question. अब इसमें सबसे क्लियर वाली बात ये है कि जो ये b और ये b सेम है, ऐसे कौन से नंबर हैं जो स्क्वायर करने से सेम डिजिट देते हैं? 1 के स्क्वायर से 1 बनता है, 5 के स्क्वायर से 25 में 5 बनता है, 0 के स्क्वायर से 0 बनता है, 6 के स्क्वायर से 36 बनता है। आखिरी में सेम नंबर चाहिए। अभी और क्या कंडीशंस हैं? ए बी सी आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, अलग अलग डिजिट्स हैं। तो अगर मैं 1 यूज करता हूं तो आई हैव टू टेस्ट दिस, आई हैव टू टेस्ट दिस। अगर मैं 5 यूज करता हूं तो आई हैव टू टेस्ट दिस, आई हैव टू टेस्ट दिस, क्योंकि 35 का स्क्वायर करोगे तो इट विल गो बियॉन्ड दिस नंबर 35। 32 के स्क्वायर से 4 डिजिट आ जाते हैं। 6 को यूज करोगे तो यू कैन टेस्ट 16 स्क्वायर 26 स्क्वायर, 36 नहीं आ सकते। जो याद है चेक कर लो, ये कितना है 441, दिख तो रहा है ऐसा, देखो 21 का स्क्वायर इज 441, दिख तो रहा है, देखो मैचेस। 31 का स्क्वायर 961, ऐसा सीसी भी तो नहीं दिख रहा। ये कितना है 225, ये भी दिख रहा है सीसी भी, लेकिन 300 से ऊपर है क्या? नो। तो आंसर तो एक ही आएगा ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी बॉम्बे? वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 1। एक ही आंसर आएगा आपका, देयर विल बी ओनली वन आंसर। वो आ चुका है मेरा, 441 इज सीसी बी, which is more than 300, yes. Very easy, child-like questions at your stage, at your level. देखो ट्राई करो।
This we can learn as an example. I can also cover this as theory. Algebra से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. You are saying n is equal to 1 plus multiplication of 4 consecutive numbers. अगर मैं इनको 1 2 3 4 ले लूं, 1 2 3 4 24 plus 1 25, तो तीन वैल्यूज पहले क्रिएट कर लो. 1 plus 1 plus ये ले लिया मैंने 2 3 4 5. 4 into 5 26, 6 into 20 120 121, 3 4 5 6. थोड़ा पेशेंस रखते हैं. 3 into 6 18, 18 into 20 360, so 361. तीन नंबर आपके सामने है. What is unique about these? Is n odd? All three of them are odd. Yes, ये सच है. Is n prime? क्या ये प्राइम है? क्या ये प्राइम है? क्या ये प्राइम है? It is not. Is n a perfect square? Yes. ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर और ये 19 का स्क्वायर. So which of these statements are true? A and C only. A and C only. अब इसमें भी एक इंटरनल पैटर्न है. जैसे रैंडमली मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, थोड़ा ध्यान से. 1 plus 1002, 1003, 1004, 1005. आपको ये तो कंफर्म है इट इज गोइंग टू बी अ ऑड स्क्वायर. ऑड स्क्वायर. लेकिन ये काय चीज का स्क्वायर होगा, या उल्टा इसका वैल्यू बताओ. इसका वैल्यू बताओ. ये क्वेश्चन आपके सामने. स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus 1002, 1003, 1004, 1005. ये वैल्यू आप में निकाल के बताओ. यूज अ कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो. इफ द नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव, if the numbers are consecutive, 1 plus, this is plus, 1 plus a into b into c into d. ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये हमेशा आपका a into d +1 के बराबर होता है और b into c -1 के बराबर होता है, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे ऑलवेज. What is 1 into 4? 4. 4 plus 1 5. ये 5 का स्क्वायर. What is 2 into 5? 10. 10 plus 1 का स्क्वायर है ये. What is 3 into 6? 18. तो ये 18 plus 1 19 का स्क्वायर. फर्स्ट इंटू लास्ट +1 का स्क्वायर होता है ये. आप मिडिल नंबर से भी लोगे तो आपको -1 करना पड़ेगा. इसका रिलेशन सीक्वेंस सीरीज और अलजेब्रा से है. इट इज लेस अबाउट नंबर्स. Highlight this question. I've given you 2-3 additional results here. Useful concepts. Let us solve a couple of more questions before we call today. Try this. S is a set of prime numbers greater than or equal to 2 and less than 100.
multiply all elements of S with how many consecutive zeros will the product end? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. ऐसा मल्टीप्लाई करते आप जाओगे 97 तक, और आप पूछ रहे हो जी बहुत बड़ा नंबर आएगा, हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर एट द एंड? जीरो तब बनता है जब 10 का मल्टीपल हो, 10 तब बनता है जब 2 और 5। अगर आपको 2 जीरो चाहिए तो यू विल नीड 2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। अगर आपको 3 जीरोस चाहिए यू विल नीड 2 क्यूब एंड 5 क्यूब। अब मेरे को बताओ, एक ही नंबर तो इवन है 2, बाकी सारे ऑड है, 5 भी एक ही है और 5 का मल्टीपल भी नहीं है, तो आखिरी में हाउ मेनी जीरोस विल आई हैव? How many consecutive zeros will I have at the end of the number? 1. Bas, this is the end of the today. Composite numbers क्या होते हैं? Composite numbers which are multiples of other values, इन्हें composite numbers कहते हैं. X and Y are positive integers such that X is a prime and Y is a composite. Y is a composite. अब इनमें से क्या क्या सच हो सकता है, क्या क्या सच नहीं हो सकता? प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है. कंपोजिट नंबर 4-5 ले लो. कंपोजिट नंबर कैन बी 15, 16, 20, कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं. अब मैं ये कंपोजिट नंबर y है और ये प्राइम नंबर x है. y माइनस एक्स कैन नॉट बी इवन. ये देखो, इन दोनों को माइनस करके इवन आता है कि नहीं आता? हो तो सकता है, हो सकता है. इफ आई सब्ट्रैक्ट 5 एंड 15 तो भी इवन आता है, हो सकता है. दिस वन सेज कैन नॉट बी, तो ये फॉल्स हो गया. x इंटू वाई कैन नॉट बी इवन. अरे कैसी बातें कर रहे हो? 16 इंटू 3 कर दो, इवन है. 5 इंटू 20 कर दो, ये भी इवन है. 2 इंटू 15 कर दो, ये भी इवन है. कैन नॉट बी इवन कह रहा था बाहर पर इसको. x प्लस वाई अपॉन एक्स कैन नॉट बी इवन. x प्लस वाई अपॉन एक्स कैन नॉट बी इवन. अब देखो, अगर मैं 20 की जगह 25 लेता, अगर मैंने 25 लिया होता, तो डू यू सी 5 प्लस 25 अपॉन 5 बन तो रहा है इवन. ये क्या है? व्हाट इज दिस? बन तो रहा है. मैंने 2 के साथ में मान लो 14 ले लिया, 2 प्लस 14 अपॉन 2, ये बन तो रहा है इवन. तो इफ आई सेलेक्ट माई वैल्यूज प्रॉपरली, all of the statements are wrong. What is true? Which one of these is true? None of these is true for sure. 100% तो कोई भी सच नहीं है इनमें से.